So, good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, Akanksha. Yes. Good afternoon, Akash. Sambhav. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon, Sameer. Good afternoon, Waris. Waris from Jammu and Kashmir, correct? Right? So, good afternoon, बच्चों. Good afternoon. So, right now we are discussing some general idea about history optional. So these are introductory sessions. Idea is to understand this course. Idea is to understand the syllabus. Idea is to understand how we should or how we would proceed for this course. Long duration course. It's a long course, around 8 months course, around 7 to 8 months course. So there is a need to know the approach, know the, you can say, the syllabus. And in the last session, if you remember, we talked about ancient India. So Nisu, good afternoon, Nisu, good afternoon. So we have a new Telegram channel, you can join, and it's a new channel for this new batch. So gradually we will make it more interactive. Fine. So Saurabh, good afternoon, welcome. So in the last session we talked about ancient India. We talked about in general history optional, and we started discussing ancient India, correct? So I explained you the syllabus of ancient India. I told you suggested readings. I tried to tell you that how it would be different from general studies, correct? So in the last session, we talked about ancient India, and I recommended that for preliminary approach, this book of R.S. Sharma is good enough. It's a decent book. For general studies also, you are studying this book. And for reference, for better approach, you can go for Upinder Singh. You can go for Upinder Singh. Done. So for ancient India, you have two important book. You have to use these two book with class notes. Class notes and these two book. So good afternoon जानवी. ये बात हम लोग एंशिएंट इंडिया में कर चुके थे. हम लोग लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक आइडिया लिया था बच्चे कि एंशिएंट इंडिया में सिलेबस क्या है, हम कैसे इसको पढ़ेंगे, हमें क्या क्या किताबों की जरूरत पड़ेगी, क्लास में हमारा अप्रोच क्या होगा.
तो हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के बारे में पिछले सेशन में बात की थी. सो महबूब आलम, हेलो बच्चे, हेलो. फाइन. सो एनी क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग एंशिएंट इंडिया, because now we will be proceeding towards medieval India. And I told you that in ancient India the most challenging question would be map based question. याद है आपको, मैंने बताया था आपको कि एंशिएंट इंडिया में सबसे चैलेंजिंग, राइट, सबसे चैलेंजिंग चीजें होंगी आपके लिए मैप बेस्ड, और हमारी प्रायोरिटी होगी मैप बेस्ड. Our priority would be map based. So good afternoon Nitish, good afternoon बच्चे. So in the last session we talked about ancient India. So anything you want to ask about ancient India, then we will take up medieval India, then we will take up modern India, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, है ना. कोई बच्चे कुछ क्वेश्चन, कुछ बातें जो आप एंशिएंट इंडिया के बारे में पूछना चाहते हो. कल मैंने आपको सिलेबस बताया था ना, कितने टॉपिक्स हैं एंशिएंट इंडिया में. हमारे यूपीएससी के सिलेबस में कितने टॉपिक हैं एंशिएंट इंडिया में, क्या याद है? एंशिएंट इंडिया में कितने टॉपिक्स हैं? कल हम लोगों ने देखा था ना एंशिएंट इंडिया में कितने टॉपिक हैं. यस, यस, करेक्ट, वेल डन. 12 टॉपिक्स हैं, राइट. एंशिएंट इंडिया में 12 टॉपिक्स हैं. वेल डन. चलो, अरे वाह, बहुत अच्छी बात. 12 टॉपिक्स हैं. उन 12 टॉपिक्स में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, जिससे, है ना, एंशिएंट इंडिया से एक क्वेश्चन तो मैप वाला पूछता ही पूछता है. उसके अलावा एंशिएंट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसको माना जाता है हमारे ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, है ना, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, अगर एंशिएंट इंडिया से एक क्वेश्चन तो करना ही है ना बच्चे? मैंने आपको बताया था कि, राइट. सो टुडे वी विल कंटिन्यू इंट्रोडक्शन ओनली, टुडे वी विल कंटिन्यू इंट्रोडक्शन ओनली. एंड मैंने बताया था कि पेपर वन में हमारे पास सेक्शन ए है, and then you have section B. सेक्शन ए है एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन पूछते हैं, 1, 2, 3 and 4. Then you have 5, 6, 7 and 8. और मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, इट इज मैप बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपल्सरी. And then from the rest question you have to write 3 question, right? You have to write 3 question. So you can write 2, 3, 4. क्या महबूब? अरे संभव हो सकता है, अगर एंशिएंट आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो you can write 2, 3, 4. 1 question is compulsory from medieval 5. Suppose you have not prepared ancient India properly, you have prepared only map, so you can write 6, 7, 8, right? तो अगर एंशिएंट इंडिया में हमें मैप के अलावा कोई एक क्वेश्चन और करना है तो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा, है ना? संभव कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी होगा? प्री हिस्ट्री, इंडस वैली. आकांक्षा कह रही है इंडस वैली नहीं, आकांक्षा कह रही है प्री हिस्ट्री, महबूब कह रहे हैं मौर्यन. बच्चे जरा समझो, मैंने कल बताया था आपको कि हर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस होते हैं. हर एक क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस होते हैं, है ना?
तो इफ यू प्रिपेयर 2-3 इंपॉर्टेंट एरियाज, सपोज इफ यू प्रिपेयर 2-3 इंपॉर्टेंट एरियाज, सपोज आपने प्रिपेयर कर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने प्रिपेयर कर लिया मौर्य, आपने प्रिपेयर कर लिया गुप्ता, यू कैनॉट राइट वन क्वेश्चन। हरमन, वेलकम हरमन, वी आर डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन, है ना, हम लोग एक जनरल बातें कर रहे हैं बच्चे। जानवी मेरी बात समझो जरा, अगर आपने 2-3 इंपॉर्टेंट एरिया अच्छे से कर लिया, उससे काम नहीं चलने वाला है। मेरी बात समझो, जो कल मैं बता रहा था आपको, अगर आपने 2-3 इंपॉर्टेंट एरिया अच्छे से कर भी लिया है, सपोज वैदिक भी कर लिया, सपोज वैदिक भी कर लिया, सपोज प्री हिस्ट्री भी कर लिया, तो आपका काम नहीं हो पाएगा बच्चे। ना आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख पाओगे, ना क्वेश्चन नंबर 3 लिख पाओगे, ना क्वेश्चन नंबर 4 लिख पाओगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हो सकता है ये क्वेश्चन अलग चैप्टर से हो, ये क्वेश्चन अलग चैप्टर से हो, ये क्वेश्चन अलग चैप्टर से हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला अप्रोच नहीं चलेगा, ये यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम वाला अप्रोच नहीं चलेगा। हमारे लिए सब चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। देन वी कैन डिसाइड इन द एग्जामिनेशन हॉल दैट विच क्वेश्चन आर राइट, विच क्वेश्चन इज इजी टू हैंडल फॉर यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गेटिंग माई पॉइंट? हमें हर एक चैप्टर को इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। ये बातें इररिलेवेंट हैं, ये बातें इररिलेवेंट हैं ऑप्शनल के लिए। अरे मेरी बात समझे? तो ये सारी बातें इररिलेवेंट है, मीनिंगलेस है कि मौर्य इंपॉर्टेंट है या वैदिक इंपॉर्टेंट है या प्री हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, 12 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना। और जो क्वेश्चन हमें दिखेगा कि हम कर पाएंगे, सपोज 3 हम कर पाएंगे करेंगे, 4 हम कर पाएंगे करेंगे। हर एक टॉपिक के हर एक सब टॉपिक पे हमें काम करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। इसका मतलब आज के बाद हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तैयारी करते वक्त जो कुछ भी हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। किसी को ज्यादा डिटेल में करेंगे, किसी को कम डिटेल में कर सकते हैं। जिसके लिए मैटर कम है उसको कम डिटेल में करेंगे, जिस पर मैटर ज्यादा है उस पर ज्यादा डिटेल में करेंगे। लेकिन कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है ये अपने दिमाग से निकाल देंगे। फाइन। सो एंशिएंट इंडिया का 2 स्ट्रेटजी हम लोगों ने बात की। एंशिएंट इंडिया में हम लोगों ने 2 स्ट्रेटजी बात की। स्ट्रेटजी 1, हम मैप पे फोकस करेंगे, मैप साइट्स पे फोकस करेंगे। स्ट्रेटजी 2, हम पूरा सिलेबस करेंगे, कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। फाइन। 2 बातें बताई मैंने केवल लास्ट सेशन में, है ना हरमन? लास्ट सेशन में विच यू मिस्ड, वी टॉक्ड अबाउट एंशिएंट इंडिया, द सिलेबस पार्ट, स्ट्रेटजी पार्ट, मैप साइट्स, और हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आपने जीएस में किया हुआ है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने जीएस में किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग उसमें कुछ और ऐड करेंगे, है ना, कुछ नई बातें भी देखेंगे। ठीक। अच्छा मुझे यह बताओ कि आपने एक अपने हिंदू के न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में
आपने एक नई साइट देखी है ना, आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे थे, आपने एक नया मेगालिथिक साइट देखा अपने न्यूज़पेपर में, है ना, अपने न्यूज़पेपर में आपने एक मेगालिथिक साइट का नाम देखा, मेगालिथिक साइट का नाम देखा, जो कि सपोज तमिलनाडु में है, जो कि नया डिस्कवर हुआ है। ये आपके किताब में नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, नॉट मेंशन्ड इन योर नोट्स, इन योर बुक, इन योर नोट्स। क्या जानवी, मुझे बताओ बच्चे, आपने कल एक साइट देखा जो मेगालिथिक साइट है तमिलनाडु में, ये न्यूज में था, ये किसी वजह से न्यूज में था और ये आपके हिंदू न्यूज़पेपर में दिखा या इंडियन एक्सप्रेस में दिखा। ये साइट आपके नोट्स में नहीं है, आपके बुक में नहीं है। क्या करोगे आप इसके साथ? आकांक्षा, क्या करोगे बच्चे उस साइट के साथ? व्हाट वुड बी योर अप्रोच? वो जो मेगालिथिक साइट जो आपके न्यूज़पेपर में छपा है, जो न्यूज में है, लेकिन वो आपके किताब में नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है ना, आपके ऑप्शनल के क्लासेस में नहीं बताया गया है, लेकिन आपके न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो उसके साथ क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? यस, सपोज कोई टेंपल साइट न्यूज में है, कोई टेंपल साइट न्यूज में है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। व्हाट यू विल डू विद दैट? उस पर रिसर्च करोगे? नहीं, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। यू विल मार्क इट इन योर मैप, यू विल नोट डाउन इंस्टेंटली, यू विल मेक ए डायरी। आपके पास एक डायरी, एक नोटबुक होनी चाहिए, सेपरेट नोटबुक। लिसन टू मी, आपके पास एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। टुडे ऑनवर्ड, संभव आज के बाद, आज क्या डेट है? राइट, आज का डेट क्या है? सपोज 13 नवंबर, 13 नवंबर। तो आज के आज ही आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। फाइन। एंड इन योर डायरी, whenever you will see a place, cultural place, ancient place in news, आपने उस डायरी में नोट करनी है, आपने उस डायरी में नोट करनी है, उसके बारे में 15-20 वर्ड लिखना है। दैट्स इट, नो रिसर्च, नो रिसर्च रिक्वायर्ड। महबूब, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वारिस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You have to note down that place. You have to write around 10-15 words on them. There is no need of research. No need of research. Just mention this in your diary so that in the end, at the time of your examination, you can revise some sites related to current affairs. Sites related to करंट अफेयर्स। अगर ये काम आप 15 मंथ्स करेंगे, 15 मंथ्स, इफ यू विल डू दिस वर्क फॉर 15 मंथ्स, you will definitely get all the question from the map. है ना बच्चे? जो ट्रेडिशनल साइट है वो हम लोग क्लास में करेंगे, कुछ करंट भी करेंगे, लेकिन आपको साथ में करते रहना है। क्या आकाश? आपको सोना नहीं है बच्चे, आपको जगे रहना है। संभव, आपको सोना नहीं है, आपको जगे रहना है। आपकी डायरी रहेगी,
कोई भी चीज जो करंट में आपके हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आएगा, प्लेसेस आएगा, आप अपनी डायरी में नोट करते रहोगे फॉर 15 मंथ्स. रेस्ट वी विल डू इन द क्लास, डोंट वरी, रेस्ट वी विल कैच. लेकिन आपने ये काम करते रहना है ना. आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना है. डन करोगे आप. इवन इफ यू आर नॉट मार्किंग, आकाश, if you are not marking this on your map, no problem, you can mark it later. Suppose you have mentioned 100 sites, no problem, you can do it within 3 days. Marking can be done, marking is easy, marking can be done, but this collection, this effort, this continuous effort will make you a better candidate. Fine, are you getting my point? Done. तो सोना नहीं है, जागते रहना है ना जानवी, संभव, आकाश, नीसू, जागते रहना है बच्चे, सोना नहीं है. और कॉन्टिन्यूअस नजर रखनी है, कॉन्टिन्यूअस नजर रखनी है क्या चल रहा है. अगर हम ये कर पाएंगे तो 2-3 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन हैंडल, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यू कैन हैंडल. फाइन, ओके, ग्रेट. एनी हाउ, सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंशिएंट इंडिया, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंशिएंट इंडिया. नाउ coming to medieval India. So should I come to medieval India? Now coming to medieval India. Right. Coming to medieval India. Ancient India, I told you everything. I provided you a background. I told you the challenges. And I hope my class is ready for that. Now coming to medieval India. See, medieval India is also a part of paper 1. So question number 1, 2, 3, 4. Right, question number 1, 2, 3, 4. These 4 questions in paper 1 from ancient. But question number 5, 6, 7 and 8 is from medieval India. And question number 5 is compulsory. It is compulsory. And here you have 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. Here you have 5 questions. A, B, C, D and E. 10 marks each. 10 into 5. 50. So, in medieval India, the first challenge is to manage this question. Question number 5. Right. Question number 5 is the major challenge for us because it is compulsory. You can ask why this is a major challenge. They are asking short question, but they are asking question from less known areas, small areas, peripheral topics. Are you getting my point? In any subject, you have some core topic and you have some peripheral topic. Yes or no? Either chemistry or commerce or engineering or physics or any subject. You have some core areas and you have some peripheral areas. So, these questions they are asking from peripheral areas. मतलब वो ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं जिसके बारे में हम तैयार नहीं होते हैं. जनरली उसको हम इग्नोर करते हैं, हम फंस जाते हैं, है ना बच्चे. हम
ज्यादा पॉपुलर टॉपिक करना चाहते हैं, ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं हम अकबर पर, ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक पर, है ना? वारिस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी आर जनरली डिवोटिंग मोर टाइम ऑन पॉपुलर एरियाज, बट दे आस्क क्वेश्चन ऑन पेरिफेरल एरियाज, राइट? सो मिडिवल इंडिया, दिस क्वेश्चन इज ए चैलेंज फॉर अस. हमें उसको पकड़ना पड़ेगा, हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सी द क्वेश्चन ऑफ लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 5, मिडिवल इंडिया. Right, see the question. See question number 5, last year, 2024. See question, answer the following question in about 150 word each. Question number A, can you see it? Can you read it? संभव पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे क्वेश्चन को? I don't think you can read it. राइट, मुझे नहीं लग रहा है कि ये. सो दीज आर 5 क्वेश्चन. सपोज सी द क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम स्मॉलर पेरिफेरल एरियाज. एनी एक्सपर्ट कैन टेल यू दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू हैंडल. सी, दे आस्क्ड मेन फीचर ऑफ मालवा स्कूल. They asked question on Malwa School of Painting. They asked question on Malwa School of Painting. Malwa School of Painting. They asked question on Kalandariya. Kalandariya. They asked question on, right, this was the easy one, Firoz Shah Tughlaq, economic policies. They asked question on Weser style of architecture. Weser style of architecture. They asked question on features of Portuguese colonial enterprise. Right. It is not visible. I don't think that it is visible. But try to understand the idea. This is the, right. This year examination, this year question. जानवी, ये दिख नहीं रहा होगा बच्चे, लेकिन don't worry. This year, this question was asked in medieval India. So, very difficult. At least I can tell you that generally we don't prepare Kalandariya or Malwa School of Painting in detail. Weser style can be done. Firoz Tughlaq's economic policy can be done. Features of Portuguese colonial enterprise can be done. But this question, these 2 questions, right, was not easy to handle, right? And directly it is not even mentioned. We have Sufis, we have Besara, Basara, right? We have provincial painting, but we don't prepare Malwa School of Painting, not even in GS, right? Even art and culture, we don't prepare Malwa School of Painting in detail. So they asked this question. So, preparing all topics, right, properly is the solution. So what is the way out? So when they ask you this question, so to handle question number 5, what should be your approach? What is the way out? You tell me. What is your suggestion? What is your suggestion for dealing with question number 5?
हरमन, आकाश, समीर, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए? आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 5 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करने के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या हमें सब कुछ डिटेल में पढ़ना चाहिए या सब कुछ पढ़ना चाहिए? जरूरी नहीं कि डिटेल में हो, लेकिन सब कुछ पढ़ना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So what is the way out? What is the solution of this kind of question? All dimension, all 12 topic. We have to prepare peripheral areas also. Yes. So, are you getting the formula? Formula is not to prepare पॉपुलर एरिया इन डिटेल, अननेसेसरी डिटेल। बच्चे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जनरली हम क्या करते हैं, हम पॉपुलर एरिया को अननेसेसरी डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज हमने अकबर पढ़ना शुरू किया, है ना, हमने अकबर पढ़ना शुरू किया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अकबर को डिटेल में चले जाते हैं, खूब सारा डिटेल में पढ़ने लगते हैं अकबर को, लेकिन हम कुछ और कैरेक्टर पर बात करना छोड़ देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा टाइम पॉपुलर टॉपिक पे नहीं बिताना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो व्हाट इज द टेक, राइट? व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, वी डोंट हैव टू डिवोट मोर टाइम ऑन पॉपुलर एरियाज, वी शुड बी प्रोफेशनल। मेरी बात समझो जरा, हमें केवल पॉपुलर टॉपिक पर बहुत ज्यादा समय बिता के भाग नहीं जाना है, हमें हर एक टॉपिक को इक्वली देखना है। केवल पॉपुलर टॉपिक को प्रिपेयर करके हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फाइन, दिस आइडिया इज डन। सो हमें सारे टॉपिक करने हैं, हमें केवल पॉपुलर टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, हमें केवल पॉपुलर टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना है, हमें सारे टॉपिक पे 4-5 पॉइंट हो तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। हर एक टॉपिक के अलग अलग डायमेंशन पर 3-4 पॉइंट हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। हर एक के बारे में फैक्चुअल डिटेल के बारे में हम बात करेंगे तो हम हम इतनी सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे। फाइन, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। सो वी हैव 12 टॉपिक्स इन मिडिवल इंडिया, वी हैव 12 टॉपिक्स इन मिडिवल इंडिया। फाइन, सो you can see, so these are the 12 topics, right? So I will come to this topic, 12 topic. So how we will be dividing the syllabus of medieval India? Fine. So how we will be handling medieval India? हम medieval India कैसे करेंगे, हमारा medieval India का अप्रोच क्या होगा? Then we will come to the syllabus. So when we prepare medieval India, right, when we prepare medieval India, we divide the topic into 3 parts, है ना। हम 3 पार्ट में टॉपिक को डिवाइड करेंगे। Try to understand it. Try to understand the syllabus of medieval India. So we will divide the medieval India into 3 parts. What is called early medieval India, early medieval India. Generally it is said that till 13th century, you can say till 1206, right?
You can say from 700 till 1206, early medieval India. Then you have period of Delhi Sultanate from 1206 to 1526. And then you have part 3, you have Mughal India. Mughal India. So from 1526 till 18th century, till 18th century. ठीक है, यह बात क्लियर है। तो मिडिवल इंडिया को हम कैसे पढ़ेंगे? मिडिवल इंडिया को हम 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला भाग अर्ली मिडिवल इंडिया, दूसरा भाग दिल्ली सल्तनत, तीसरा भाग मुगल इंडिया। और इसके बाद मुगल इंडिया से हम इंटर कर जाएंगे मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया में इंटर कर जाएंगे। तो मॉडर्न इंडिया के लिए एक आधार देगा हमें मुगल इंडिया, है ना। मॉडर्न इंडिया के लिए एक हमें आधार देगा, बिकॉज ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश होगा मुगल रूल को खत्म करके। फाइन। तो मुगल इंडिया हमें लिंक करेगा, हमें आगे लेके जाएगा मॉडर्न इंडिया के लिए। तो हम 3 भाग में पढ़ेंगे इसको। फिर हम क्या करेंगे बच्चे? हम अर्ली मिडिवल इंडिया को भी 2 भागों में बांट देंगे। हम पहले नॉर्थ की बात करेंगे, फिर हम साउथ की बात करेंगे, है ना। हम नॉर्थ की बात करेंगे, हम फिर उसके बाद साउथ की बात करेंगे। नॉर्थ में हम देखेंगे कि हाउ देयर वाज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, हाउ देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ राजपूत, है ना। हम नॉर्थ में देखेंगे कि हाउ देयर वाज फ्यूडलिज्म, हम देखेंगे नॉर्थ में हाउ देयर वाज फॉरेन इन्वेजन, हाउ देयर वाज अरब इन्वेजन, हाउ देयर वाज टर्किश इन्वेजन। है ना बच्चे? आपको समझ में आ रही है? हम लोग मिडिवल इंडिया में क्या करने वाले हैं? हम लोग मिडिवल इंडिया को 3 भाग में पढ़ लेंगे। पहला भाग होगा अर्ली मिडिवल इंडिया। अर्ली मिडिवल इंडिया हम 13th सेंचुरी तक पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्थ पढ़ेंगे, फिर हम साउथ पढ़ेंगे, है ना। और नॉर्थ में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ेंगे, राजपूत किंगडम पढ़ेंगे, इन्वेजन पढ़ेंगे, अरब इन्वेजन, टर्किश इन्वेजन। तो हम नॉर्थ जब पढ़ेंगे तो हम नॉर्थ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये सारे डेवलपमेंट हम नॉर्थ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट करेंगे पहले। फिर हम नॉर्थ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, फिर नॉर्थ के सोशल डेवलपमेंट करेंगे, फिर नॉर्थ के कल्चरल डेवलपमेंट करेंगे, कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट करेंगे। इसमें आर्ट भी होगा, इसमें लिटरेचर भी होगा। तो जो टॉपिक भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, जो कुछ भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, हम सब करेंगे। पहले पॉलिटिकल टॉपिक करेंगे, फिर इकोनॉमिक टॉपिक करेंगे, फिर सोशल टॉपिक करेंगे, फिर कल्चरल टॉपिक करेंगे। तो हम नॉर्थ कर लेंगे, उसी तरीके से हम साउथ करेंगे। पॉलिटिकल टॉपिक, इकोनॉमिक टॉपिक, सोशल टॉपिक, कल्चरल टॉपिक। और साउथ में हमारा फोकस एरिया होगा चोलाज, है ना। बाकी एरिया भी करेंगे साउथ में इस पीरियड के, चाहे वो राष्ट्रकूट हो, चाहे वो कल्याणी चालुक्य हो, चाहे वो पांड्या हो, लेकिन हम फोकस करेंगे चोलाज पर। चोला के रूलर के बारे में पढ़ेंगे, चोला के फॉरेन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, चोला के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चोला के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, चोला के आर्किटेक्चर के बारे में। तो चोला के सारे डायमेंशंस को हम पढ़ेंगे, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब हम मिडिवल इंडिया करेंगे तो अर्ली मिडिवल इंडिया करेंगे पहले,
एंड अर्ली मिडिवल इंडिया का पीरियड क्या होगा? 700 से लेकर 1206 तक ओवरऑल ये पीरियड होगा। और अर्ली मिडिवल इंडिया को दो भागों में बांट देंगे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट करेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन सारा करेंगे, चाहे वो राजपूत हो या इन्वेजन हो या कोई और टॉपिक हो। फिर हम इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन, हम उसकी बात करेंगे, है ना। हम अर्ली मिडिवल इंडिया में लिटरेचर का डेवलपमेंट देखेंगे, अर्ली मिडिवल इंडिया में आर्ट का डेवलपमेंट देखेंगे, अर्ली मिडिवल इंडिया में डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन देखेंगे, पॉसिटी ऑफ कॉइन देखेंगे, फ्यूडल ट्रेंड देखेंगे। हम लोग इस तरीके से टॉपिक को डिवाइड करेंगे, है ना। उसी तरीके से अर्ली मिडिवल इंडिया का जब कल्चरल टॉपिक करेंगे तो हम शंकराचार्य करेंगे, वेदांत करेंगे, है ना। तो ये सारे टॉपिक भी करेंगे हम कल्चरल एरियाज में। तो अर्ली मिडिवल इंडिया को हम इस तरीके से बांट देंगे और हम पढ़ेंगे। फिर जब चोला करेंगे तो चोल या बाकी एरिया पे बात करेंगे। चोल के स्टेट पे क्वेश्चन आता है, चोल के नेचर ऑफ स्टेट पर, वहां हम हिस्टोरियन के डिबेट को लेंगे कि चोला स्टेट वॉज ए सेंट्रलाइज्ड स्टेट, नीलकंठ शास्त्री। चोला स्टेट वॉज ए सेगमेंट्री स्टेट, बर्टनस्टीन, है ना। वारिस, आपने नाम सुना हुआ है बर्टनस्टीन का, सेगमेंट्री स्टेट मॉडल, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिव स्टेट करेंगे, बंदोपाध्याय का कंसेप्ट भी देखेंगे। तो हम लोग नेचर ऑफ स्टेट, चोला का सारा अचीवमेंट, उनका कल्चरल अचीवमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, ट्रेड वाला अचीवमेंट, सब कुछ देखेंगे। तो हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया पहले करेंगे। करेक्ट, समझ में आ गई बात? इतनी बात पहले समझ में आई। सो मिडिवल इंडिया में पहले हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया करेंगे। ये कब तक होगा? 13th सेंचुरी तक होगा। जरा देखो सिलेबस, देखो जरा सिलेबस देखते हैं। देखो अर्ली मिडिवल इंडिया में 750 टू 1200 ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। मतलब टॉपिक नंबर 13 और टॉपिक नंबर 13 एंड टॉपिक नंबर 14। 13 करेंगे, 14 करेंगे, कल्चरल ट्रेडिशन भी करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक अर्ली मिडिवल इंडिया के, है ना। ये दोनों टॉपिक क्या हैं? अर्ली मिडिवल इंडिया के हैं। करेक्ट। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? डिवाइड करके करेंगे, नॉर्थ साउथ, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल। टॉपिक सारे करेंगे लेकिन इसको स्ट्रक्चर नया देंगे, इसको स्ट्रक्चर नया देंगे। पहले नॉर्थ, फिर साउथ, फिर नॉर्थ में पॉलिटिकल अलग, सोशल अलग, इकोनॉमिक अलग, कल्चरल अलग, फिर साउथ में सेम अप्रोच, है ना। देन हम दूसरे पार्ट में आ जाएंगे बच्चे, 13th 14th सेंचुरी, है ना। हम दूसरे पार्ट में आ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत। ये कौन सा पीरियड है? 13th 14th सेंचुरी, 13th 14th सेंचुरी। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत को, राइट, इस पीरियड को दो भागों में बांटते हैं। जनरली 13th 14th सेंचुरी वाला पार्ट होता है। उसके बाद सल्तनत बिखरने लगता है, सल्तनत कमजोर होने लगता है। फिर वी हैव 15th 16th सेंचुरी, है ना। तो हमारे सिलेबस में दो भाग कर दिया गया है, एक 13th 14th सेंचुरी, एक 15th 16th सेंचुरी। तो हम पहले पॉलिटिकल डायमेंशन देख लेंगे, है ना बच्चे। हम पहले पॉलिटिकल डायमेंशन देख लेंगे। दिल्ली सल्तनत में हम क्या करेंगे? पॉलिटिकल डायमेंशन। हम पहले रूलर्स की बात करेंगे, हम पहले रूलर्स की बात करेंगे।
सपोज स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, and then you have Lodi dynasty. We will discuss how Qutbuddin Aibak contributed, how Iltutmish contributed, how Rajia contributed, how Balban contributed. Then in Khalji dynasty, how Alauddin Khalji contributed. In Tughlaq dynasty, how Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq contributed. And then you will see that decline, Taimur's invasion, Mongol invasion, and then there was decline. So we will also discuss decline. तो हम लोग पहले रूलर की बात करेंगे, है ना बच्चे। जब हम लोग दिल्ली सल्तनत में आएंगे तो पहले रूलर की बात करेंगे, स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे, खलजी डायनेस्टी की बात करेंगे, तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे, लोदी डायनेस्टी की बात करेंगे, और मेन रूलर, उनकी पॉलिसीज वो हम देखेंगे। तो पहले रूलर को निपटा देंगे, है ना बच्चे। पहले रूलर के बारे में एनालिसिस कर लेंगे, इसमें 3-4 दिन 5 दिन टाइम लगाएंगे, और जब रूलर पे बात कर लेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग रूलर की बात कर लेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, नेचर ऑफ स्टेट कैसा था, वॉज इट ए थियोक्रेटिक स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट कैसा था, वॉज इट ए थियोक्रेटिक स्टेट, दिल्ली सल्तनत के समय में राइट इकोनॉमी कैसी थी, क्या थर्ड अर्बनाइजेशन हुआ था, क्या टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ था, टेक्नोलॉजी कैसी थी, है ना, मोहम्मद हबीब का कंसेप्ट। फिर हम देखेंगे कि सल्तनत के पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, सल्तनत के पीरियड में कल्चर कैसा था, लिटरेचर कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, पेंटिंग कैसा था। तो हम ये सब कुछ करेंगे। फिर सल्तनत का डिक्लाइन होगा, फिर प्रोविंशियल डायनेस्टीज आएगी, है ना। और जब हम कल्चर करेंगे बच्चे, तो कल्चर में हम लोग भक्ति मूवमेंट भी करेंगे और सूफी मूवमेंट भी करेंगे, भक्ति और सूफी भी करेंगे। फाइन। सो हमारे मिडिवल इंडिया का दूसरा पार्ट क्या होगा? हमारे मिडिवल इंडिया का दूसरा पार्ट होगा सल्तनत वाला पार्ट। सल्तनत वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं? पहले रूलर की बात करेंगे, उनकी पॉलिसीज की बात करेंगे जो आप जीएस में करते थे। उसके बाद सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, उनके नेचर ऑफ स्टेट की बात करेंगे, उनकी किंगशिप की बात करेंगे। फिर हम इकोनॉमी पे बात करेंगे, एग्रीकल्चर पे, ट्रेड पे, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आया, क्या इसको टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। फिर सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आया, हम वो देखेंगे। एंड देन हम कल्चर पे बात करेंगे, और कल्चर में हम भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट भी देखेंगे, है ना। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट भी देखेंगे। उसके बाद 15-16 सेंचुरी में प्रोविंशियल डायनेस्टीज आई, सल्तनत से अलग होने लगे, मालवा, बंगाल, गुजरात, है ना। कुछ राजपूत स्टेट्स भी अलग हो गए, लाइक मेवाड़। तो हम उनके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग साउथ चलेंगे, और साउथ में हम लोग विजयनगर देखेंगे, विजयनगर एंड बहमनी देखेंगे। So we will talk about these states, these areas. Is that fine? Are you getting my point? तो मैंने क्या बताया कि मिडिवल इंडिया के टॉपिक को हम लोग अलग तरीके से सजाएंगे। पहला पार्ट अर्ली मिडिवल इंडिया, दूसरा पार्ट सल्तनत, राइट। अगर आप देखेंगे सिलेबस, इफ यू कैन सी द सिलेबस, सो 13th सेंचुरी
ये सल्तनत पार्ट में लेंगे हम लोग, 14th सेंचुरी सल्तनत पार्ट में लेंगे, सोसाइटी कल्चर इकोनॉमी 13th 14th, देन 15th 16th सेंचुरी सोसाइटी कल्चर इकोनॉमी। तो यहां तक हम सल्तनत, राइट, यहां तक हम सल्तनत पीरियड में रहेंगे, यहां तक हम सल्तनत पीरियड की बात करेंगे, राइट। तो ये सारा एरिया पार्ट 2 हो जाएगा हमारा, ये एरिया हो जाएगा हमारा पार्ट 2, ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1, ये एरिया हो जाएगा हमारा पार्ट 1। फिर आ जाएंगे हम तीसरे पार्ट में, राइट, जिसको कहते हैं पार्ट 3, जिसको हम कहते हैं मुगल पीरियड, राइट, जिसको हम कहते हैं मुगल पीरियड। फाइन, तो हमारा पीरियड हो जाएगा थर्ड पीरियड, मुगल पीरियड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन सेम प्रॉब्लम, राइट, सेम अप्रोच, मुगल पीरियड। वी विल टॉक अबाउट रूलर्स, हम रूलर के बारे में पहले बात करेंगे। मुगल पीरियड में हम सारे रूलर के बारे में बात करेंगे, अकबर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बाबर, हुमायूं, शेरशाह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर की बात करेंगे। मुगल पीरियड में ये सब क्या क्या हुआ, लिटरेचर की बात करेंगे, है ना। जब भी हम कोई चैप्टर लेंगे तो इसके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये एरिया कंप्लीट हो जाता है, राइट। 18th सेंचुरी में हम आ जाते हैं, मुगल डिक्लाइन होने लगता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा फिर से साउथ जाएंगे, जैसे यहां पर विजयनगर बहमनी था, हम मराठा की बात करेंगे। 18th सेंचुरी में मुगल डिक्लाइन की बात करेंगे, राइज ऑफ न्यू स्टेट की बात करेंगे। सो दीज आर सम टॉपिक ऑफ मिडेवल इंडिया, सम टॉपिक ऑफ मिडेवल इंडिया, राइट। तो मिडेवल इंडिया को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और तीसरा पार्ट हमें मॉडर्न के लिए तैयार कर देगा। जब हम तीसरा पार्ट पढ़ लेंगे तो हम मॉडर्न के लिए तैयार हो जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, है ना। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों का अप्रोच क्या होगा मिडेवल इंडिया में? जब भी कोई एरिया हम लोग काम करेंगे, जब भी किसी एरिया पे हम लोग काम करेंगे, तो पहले रूलर पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद बाकी डेवलपमेंट पे काम करेंगे। पहले they used to ask question only on political development, but now there is a trend of asking question on economic development, social development, cultural development. So what we will do, we will, right, focus more on इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट, लेकिन पहले हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी बात कर लेंगे। करेक्ट, समझ में आ रही है बात? तो मिडेवल इंडिया को हमने 3 भागों में बांट दिया। अर्ली मिडेवल इंडिया, सल्तनत पीरियड, एंड इन सल्तनत पीरियड यू हैव भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट ऑल्सो हम पढ़ेंगे वहां पे, एंड देन यू हैव मुगल पीरियड। फाइन, इतनी बात समझ में आई? पहले ये बताओ, सिलेबस मिडेवल इंडिया का समझ में आया? आसान है ना, 3 ही पार्ट है। हम लोग क्या करने वाले हैं मिडेवल इंडिया में? नॉर्थ फिर साउथ, पॉलिटिकल पहले, फिर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल। आसान है ना? ऐसे समझना आसान होगा या नहीं होगा? है ना बच्चे? सपोज क्वेश्चन पूछता है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन 13th एंड 14th सेंचुरी, क्या होगा आंसर? सपोज क्वेश्चन पूछता है दैट डिस्कस डेवलपमेंट
right, related to agriculture, during 13th, during the 13th and 14th century. 14th century India. Right, discuss the development related to agriculture during the 13th and 14th century India. तो हमें क्या लिखना है? हमें क्या लिखना है बच्चे? हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखना है ना? हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखना है. हमें सारे अग्रेरियन पॉलिसीज लिखने हैं, एग्रीकल्चर का स्टेटस लिखना है, इरिगेशन लिखना है ना? हमें फॉरेन राइटर को कोट करना है, हमें इब्न बतूता को यूज करना है. तो हम लोग बात करेंगे. तो ये क्वेश्चन दिखने में कठिन लगता है, बट वंस यू हैव ए स्ट्रक्चर यू कैन इजीली हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. यू कैन इजीली हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? वो सेंचुरी का नाम दे देंगे या सल्तनत का नाम देंगे या मुगल का नाम देंगे. आपको डरना नहीं होगा, आपको समझना होगा कि अच्छा ये मुगल पीरियड के एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं, ये सल्तनत पीरियड के एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं, ये अर्ली मिडेवल इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं. तो एक्चुअली मिडेवल इंडिया को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं, और हम राइट 3 भागों में बांट रहे हैं. पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना? और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग पहले पॉलिटी समझ रहे हैं कि पॉलिटी नॉर्थ में कैसी थी और साउथ में कैसी थी इस पीरियड में साउथ में क्या चल रहा था, फिर नॉर्थ में मुगल पीरियड में क्या चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था. तो हम पॉलिटी समझ लेते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इकोनॉमी समझेंगे सारे पीरियड का. जब हम इस पीरियड की बात करेंगे तो इसको समझेंगे लाइक दिस. फिर हम सोसाइटी को समझेंगे लाइक दिस. उसके बाद हम कल्चर को समझेंगे, है ना? कल्चर को समझेंगे कि कल्चर का डेवलपमेंट इस पीरियड में कैसा था, इस पीरियड में कैसा था. कल्चर का मतलब इस पीरियड में लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हो रहा था, इस पीरियड में आर्ट में क्या डेवलपमेंट हो रहा था, इस पीरियड में रिलीजन में क्या डेवलपमेंट हो रहा था. सपोज इस पीरियड में लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुआ, इस पीरियड में लिटरेचर में क्या डेवलपमेंट हुआ, इस पीरियड में आर्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ, इस पीरियड में आर्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसमें रिलीजन में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसमें रिलीजन में क्या डेवलपमेंट हुआ. फाइन. सो अर्ली मिडेवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल. बच्चे, जो चीजें दूर से बहुत कठिन लगती है, ये सारी चीजें एक पेज में आपके सामने हो जाएगी. When you will arrange all ideas in one page, you can revise. एक पेज में आपको सारी चीजें आपके सामने हो जाएगी कि किस पीरियड में पॉलिटी में क्या चल रहा था, सोसाइटी में क्या चल रहा था, रिलीजन में क्या चल रहा था, लिटरेचर में क्या चल रहा था. है ना? इससे आसान होगा कि नहीं होगा? रिवीजन करना आसान होगा कि नहीं होगा? यू कैन मेक ए टेबल, है ना? एकाएक में पूछ लूं आपसे कि अर्ली मिडेवल इंडिया में लिटरेचर में क्या प्रोग्रेस हुआ, तो यू वुड बी कंफ्यूज्ड. लेकिन वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दिस टेबल, यू कैन इजीली हैंडल. है ना? इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा जो एक ही पेज में
पूरे मिडेवल इंडिया के पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर को हम एक टेबुलर फॉर्म में कर पाएंगे? है ना? एक टेबुलर फॉर्म में हम समझ पाएंगे कि क्या चल रहा था पॉलिटी में, क्या चल रहा था इकोनॉमी में, क्या चल रहा था सोसाइटी में, क्या चल रहा था कल्चर में. दिस इज पॉसिबल महबूब, दिस इज पॉसिबल. है ना? फाइन. So I hope you understand what would be our approach in medieval India. What would be our approach in medieval India? Actually, बच्चे, हमें चीजों को आसान करना है, हमें चीजों को डिफिकल्ट नहीं करना है ना? वी हैव टू प्रिपेयर इन ए साइंटिफिक मैनर. वी हैव टू प्रिपेयर इन ए साइंटिफिक मैनर. है ना? हम हौच पौच में नहीं समझ सकते. हम फैक्ट के गैदरिंग में हिस्ट्री को नहीं समझ सकते. हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन. हिस्ट्री इज नोइंग सोसाइटी, इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर पीरियड. तो हमें वही काम करना है, हमें उसको अरेंज करना है. नाउ, क्या हमें कोई बुक की जरूरत पड़ेगी? डू वी नीड एनी बुक? तो हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? राइट. फॉर मिडेवल इंडिया, व्हाट शुड बी आवर सजेस्टेड रीडिंग? क्या हमें कोई बुक पढ़नी चाहिए? डू यू नो एनी बुक? What book you should read? Best book is 2 volumes of Satish Chandra. If after class notes, if you have to write 2 volumes of Satish Chandra. Satish Chandra is the best. Satish Chandra, you have 2 volumes, volume 1 and volume 2. Right? This is the best available book for civil services, medieval India. 2 part. Yes, Akash. सतीश चंद्र सबसे अच्छी चॉइस है, सबसे अच्छी चॉइस है. So with class notes, if you are adding, right, class notes and Satish Chandra, so it is sufficient. It is sufficient. है ना आकाश? So class notes, whatever we will be writing in the class, whatever we will learn in the class, and then right, Satish Chandra, reading Satish Chandra, it is sufficient. There are some IGNOU material also, but we would be adding that in our class notes. है ना? Whatever IGNOU material, right, provides, we would be adding those information in our class notes. So don't worry. ठीक. So हमें मिडेवल इंडिया के लिए केवल सतीश चंद्र को रेफर करना पड़ेगा. One, Satish Chandra is your NCERT, old NCERT, and then there are 2 volumes of Satish Chandra that you can add. ठीक है? So anything you want to ask in medieval India? You are only listening to me, right? You are not, right, asking anything. केवल मुझसे बुलवाओगे. फाइन.
Yes, anything you want to ask. बच्चे, मिडेबल इंडिया में बात समझ में आ गई? आपको पहले केवल एनसीईआरटी पढ़नी है और 2 वॉल्यूम है सतीश चंद्रा का जिसको रेफर करना है, अभी नहीं खरीद के पढ़नी है, पहले क्लास करनी है, क्लास समझनी है ना? उपिंदर सिंह को पहले पढ़ लिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा, यू कैनॉट ऑर्गेनाइज इट। हमें इन किताबों को यूज करना है अपने सिलेबस के अनुसार, राइट? चाहे उपिंदर सिंह हो या सतीश चंद्र हो, वो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, हमें उनको यूज करना है बच्चे अपने पर्पस के लिए। तो पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। डन? एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन मिडेबल इंडिया? अरे कुछ तो पूछो। आकांक्षा, समीर, वारिस, at least ask something. Yes, what about PW books? But these books are good, right? But these books are right now for general studies. है ना जानवी? So, if you are not reading NCERT, suppose you can use these books. These are well written books. है ना? These are well written books. जानवी, PW books, basic book, well written book, you can use them, but at some point of time you have to refer to some textbook, and for that purpose I told you that you can refer Satish Chandra. So medieval, I told you there are 3 part, fine, and rest we will be doing in the class. Mehboob, right? Can you see some previous year question on medieval? Do you want to see some previous year question on medieval? Just see. See some previous year question on medieval. Can you handle? Just see this. Just see what kind of question they ask in medieval India. What kind of question they ask? Suppose in Chola period, what kind of question they ask? Right, the Chola ruler were not only mighty conquerors, they were efficient administrator, but also builders of temples. Right? Suppose in question number 1, Cholas, in this question they are asking you whether you know their military achievements. Military achievements, whether you know their administration, whether you know the Dravidian style of temple structure, Dravidian, right? Dravidian style, Dravida style, Dravida style of temple architecture. So, and you have to comment. What is the meaning of comment? You don't have to just write their military achievement, administration, and Dravidian style of temple. You have to comment. So, sometimes they will give you discuss. Sometimes they will give you comment, examine, critically examine. So, what is the general meaning of comment?
Suppose in this question you have to write all, then what would be the comment? So any difference you have? Who can tell me? What is the meaning of comment here? Right, views. Right, views. So, whenever you are writing comment, your views would be important. Not only information, views also. Right, so it's a long question, right? So, you have to write less when you have to include all. You have to write your views, opinions. Right. Now, question number 2. Suppose assess the causes of the defeat of northern Indian state against the Turkish invasion. Assess the causes of the defeat. Suppose here you have to write, suppose one historian's view, suppose Jadunath Sarkar's view, that this was the cause. You have to write whether this cause is okay or not. मेरी बात समझो जरा. Suppose question number 2. Assess the causes. Assess the causes. You don't have to write the causes. आकांक्षा, मेरी बात समझ रहे हो? हमें केवल causes नहीं लिख देना है. Suppose इस क्वेश्चन में you have many views. You have Jadunath Sarkar's view. You have Satish Chandra's view. You have Irfan Habib's view. तो हमें बताना है कि क्या ये कारण उचित है, किस हद तक ये कारण सही है. अगर जदुनाथ सरकार ने कुछ कारण बताया है तो किस हद तक ये कारण सही है. अगर इरफान हबीब ने कुछ कारण बताया है तो किस हद तक ये कारण सही है. सतीश चंद्र ने कुछ कारण बताया है तो किस हद तक ये कारण सही है. यू हैव टू एसेस, यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू गिव योर व्यूज ऑन हिस्टोरियंस व्यू. मतलब हिस्टोरियन के व्यू के ऊपर, हिस्टोरियंस व्यू के ऊपर आपको अपना व्यू देना है. राइट, बड़ी मुश्किल है भाई. क्या वारिस, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई. विचित्र क्वेश्चन पूछ रहा है. कह रहा है कि जो कॉजेज दिए जाते हैं वो कितने हद तक सही हैं, एसेस करिए. मतलब जो हिस्टोरियन ने आइडिया दिया हुआ है वो किस हद तक माना जा सकता है. किसी को 80% माना जा सकता है, किसी को 70% माना जा सकता है, किसी को 30% माना जा सकता है. तो किस हद तक माना जा सकता है, कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा गलत है ना बच्चे. तो यूपीएससी प्लेन नहीं पूछेगा. राइट, एसेस द कॉजेज ऑफ द डिफीट. हिस्टोरियंस के व्यू तो देने पड़ेंगे, सतीश चंद्र को यूज करना पड़ेगा. है ना. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू कंसीडर सुल्तान इल्तुतमिश टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? डिस्कस. I hope you all know this, that Qutbuddin Aibak was the founder, but Iltutmish was the real founder. Iltutmish was the real founder.
So, of course, Iltutmish was the real founder. How you will write it? So, you will write the limitation of Aibak also. And you will write the achievements of Iltutmish also. Are you getting my point? Yes, Iltutmish was the real founder because Aibak could not do certain thing. मेरी बात समझ रहे हो? आइबक सब चीजें नहीं कर पाए. He could not establish his capital. He could not establish his currency system. He could not establish इक्ता system. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या देना है? हमें आइबक का लिमिटेशन देना है और इल्तुतमिश का अचीवमेंट देना है. मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं करेंगे हम कि दे आर आस्किंग द इल्तुतमिश टू बी द रियल फाउंडर. यू विल जस्ट राइट द अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश बिकॉज दे आर आस्किंग रियल फाउंडर. फाउंडर वॉज आइबक बट द रियल फाउंडर वॉज इल्तुतमिश. इसका मतलब यह है कि आइबक कुछ काम नहीं कर सके लेकिन इल्तुतमिश ने यह काम कर दिया. है ना? सो आई होप आई जस्ट वॉन्टेड टू शो, है ना, मैं केवल आपको यह बताना चाहता था कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. इंफॉर्मेशन का लिमिटेड रोल है. इंफॉर्मेशन का रोल है लेकिन केवल इंफॉर्मेशन से नहीं है. बातचीत, राइट, एनालिटिकल अप्रोच, समझने बूझने की शक्ति, राइट, दैट वुड बी टेस्टेड. See this interesting question. Last year they asked this question. Do you agree that schemes of Muhammad bin Tughlaq were correctly conceived, badly executed and disastrously abandoned? है ना? तो हम जियाउद्दीन बर्नी के बारे में लिखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी ने इनके 5 प्रोजेक्ट के बारे में बताया. We will write that when whatever he decided, it was decided in a with a good intention. उन्होंने जो कुछ करना चाहा उसका इंटेंशन सही था. सो हम जियाउद्दीन बर्नी के कॉन्टेक्स्ट में यह बात लिखेंगे कि उनका इंटेंशन करेक्टली कंसीव्ड, देन बैडली एक्सक्यूटेड, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया. दैट्स व्हाई इट फेल्ड. तो इस क्वेश्चन में हम जियाउद्दीन बर्नी का कॉन्टेक्स्ट लेंगे, इब्न बतूता का कॉन्टेक्स्ट लेंगे, है ना, संभव. इसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक के 5 प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि उसका इंटेंशन क्या था, उन्होंने लागू कैसे किया, इसका रिजल्ट क्या हुआ. मेरी बात समझ रहे हो? जियाउद्दीन बर्नी एक हिस्टोरियन है. उन्होंने 5 प्रोजेक्ट के बारे में बताया. कंटेम्पररी हिस्टोरियन है. उन्होंने 5 प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था. हम क्या करेंगे? उनके हर एक प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि उसका इंटेंशन क्या था, फिर उसको लागू कैसे किया गया, फिर उसका इंपैक्ट क्या हुआ. जब हम तीनों बता देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, है ना. जब सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के पीछे इंटेंशन क्या है, प्रोजेक्ट को लागू कैसे किया गया, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, फिर दूसरा प्रोजेक्ट, फिर तीसरा प्रोजेक्ट, फिर चौथा प्रोजेक्ट, फिर 5वां प्रोजेक्ट. तो हम सारे प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताएंगे, सारे प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताएंगे कि प्रोजेक्ट लागू किया गया था अच्छे इंटेंशन से, लेकिन उसको प्रोजेक्ट सोचा गया था अच्छे इंटेंशन से, लागू वो कर नहीं पाए और बाद में छोड़ के भाग गए. तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी, डिस्कस हो जाएगी कि इट वॉज पुअरली कंसीव्ड,
badly executed and disastrously abandoned. I hope you are getting it. So these are some questions which just I wanted to show you that what is the requirement, हमें कैसे तैयार करना है, हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. Is that fine? So I hope now you understand मिडेवल इंडिया को हम लोग कैसे करेंगे. और जो लास्ट पार्ट है मिडेवल इंडिया, मुगल पार्ट जो है, वो मुगल पार्ट हमें मॉडर्न इंडिया के लिए एक बैकग्राउंड देता है. ये आप मानते हो कि नहीं मानते? राइट? पीपुल कैन से दैट मुगल इंडिया से क्वेश्चन नहीं आएगा. मुगल इंडिया से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन मुगल इंडिया को पढ़ने के बाद यू विल अंडरस्टैंड मॉडर्न इंडिया इन ए बेटर मैनर. दोनों कनेक्टेड है. मॉडर्न बिना मुगल के हम नहीं शुरू कर सकते. डू यू एग्री और नॉट? बिकॉज ब्रिटिश रूल एक्चुअली रिप्लेस्ड मुगल रूल. करेक्ट और नॉट? तो मुगल से ज्यादा क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन मॉडर्न को बेहतर समझने के लिए मुगल को समझना जरूरी है. मुगल एक कनेक्टिंग लिंक है. मुगल एक कनेक्टिंग लिंक है मॉडर्न के लिए. तो मॉडर्न में आप अच्छे नहीं हो पाएंगे जब तक मुगल को नहीं समझेंगे. एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, क्योंकि मुगल कनेक्ट करता है ना बच्चे? मुगल हमें कनेक्ट करता है. तो जनरली क्या होता है कि पीपुल स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडिया. यू स्टार्ट विथ मॉडर्न इंडिया एंड यू डोंट हैव आइडिया अबाउट मुगल, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी. आपको एक अटपटा सा लगेगा. फाइन. सो देयरफॉर राइट, वी वुड ऑल्सो लाइक टू स्टार्ट विथ मुगल. राइट? हम लोग अपनी टॉपिक जो शुरू करेंगे मुगल से ही शुरू करेंगे. एंड देन वी विल इंटर आफ्टर 10-12 days वी विल इंटर इनटू राइट मॉडर्न इंडिया. Is that fine? Now, coming to paper 2. And in paper 2, you have again section A, and then you have section B. In section A, you have 12 topics from modern India, and then 3 topics from post-independence consolidation. And then section B is world history. Here you have 12 topics. है ना बच्चे? तो पेपर 2 में भी 2 टॉपिक हैं. पेपर 2 में भी 2 सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B. सेक्शन ए में 12 टॉपिक मॉडर्न इंडिया के हैं और 3 टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस के हैं, मतलब 15 टॉपिक. और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के 12 टॉपिक हैं, मतलब टोटल 27 अराउंड टॉपिक्स हैं. है ना? तो मॉडर्न इंडिया में मैंने कहा कि 15 टॉपिक्स हैं. मॉडर्न इंडिया में इफ यू कैन सी राइट 15 टॉपिक्स हैं. And in modern India also, right, suppose question number 1, question number 1, 2, 3 and 4. These question is from modern India section. And again the challenge is question number 1 is compulsory. And in question number 1 you have 5 questions.
क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन आते हैं, अगेन 10 इंटू 5 50, right? So again the same problem in paper 2, also the same challenge. पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन पेरिफेरल टॉपिक से पूछे जाते हैं, सम टाइम स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। इसका मतलब यूपीएससी चाहता है कि हम सारे सिलेबस पर काम करें, हम किसी टॉपिक को छोड़े नहीं, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे, है ना बच्चे। मॉडर्न इंडिया में भी सेम चैलेंज है। जरा देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसा होता है, जरा देखो। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? दिस इज ओरिजिनल क्वेश्चन, सेक्शन ए, 10 इंटू 5, फाइन। ऑल दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, राइट? all these question, 5 question you will see concept based, not information based. ये सारे 10 मार्कर होते हैं, 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, सारे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। मतलब कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बिना रिवीजन के आप कर सकते हो, बिना रिवीजन के कर सकते हो, लेकिन हां पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो मॉडर्न इंडिया में भी अंडरस्टैंडिंग, कहानी पता होना चाहिए, कहानी पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन की जरूरत बहुत नहीं है। जरा देखो ना क्वेश्चन देखो। राइट, हियर यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन। राइट, यू विल सी मॉडर्न इंडिया में जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, मॉडर्न इंडिया में जो क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मॉडर्न इंडिया का, राइट, इट इज क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन, है ना? क्रिटिकली एग्जामिन करनी है आपको। वो स्टेटमेंट कोई दे देंगे, वो कोई एक स्टेटमेंट दे देंगे, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करनी है। आपको बताना है कि कितना हद तक यह सही स्टेटमेंट है ना? अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हमें क्या बताना है कि किस हद तक यह सही स्टेटमेंट है। क्रिटिकली एग्जामिन करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सपोज देखते हैं जरा क्वेश्चन, द बैटल ऑफ पलासी वाज ए स्कर्मिस। यह क्या होता है? while the battle of Buxar was a real war। बस एक स्टेटमेंट दे दिया, बताओ तो क्या होगा इसका मतलब? आपने जीएस में पढ़ा होगा, कुछ तो आइडिया होगा आपको। द बैटल ऑफ पलासी वॉज ए स्कर्मिस while the battle of Buxar was a real war। क्या लिखना है इसमें? बताओ, कोई तो बताओ। स्कर्मिस मतलब समझते हो? झड़प। सो बैटल ऑफ पलासी वॉज ए कॉन्स्पिरेसी, इट वॉज नॉट ए बैटल। है ना? पढ़ा होगा ना ये? अरे ये तो पढ़ा होगा ना। बैटल ऑफ पलासी वॉज नॉट ए बैटल, इट वॉज ए बिट्रियल, इट वॉज ए कॉन्स्पिरेसी। तो हमें एक्चुअली बैटल ऑफ पलासी के नेचर के बारे में लिखना है। What kind of battle it was? It was not battle. It was a skirmish. It was a झड़प। है ना? जब ट्रैफिक में रेड लाइट पे किसी को गाड़ी का किसी से लग जाता है तो आके नहीं लड़ने लगते हैं। That kind of झड़प। है ना समीर?
Battle of Plassey was a skirmish. It was a conspiracy. It was a betrayal. Clive's conspiracy. Mir Jafar, his commander, he joined Clive, है ना समीर? सो मीर जाफर जो कमांडर था वही इनके साथ नहीं था, वही इनके साथ नहीं था, है ना? तो इसका मतलब बैटल ऑफ पलासी कोई लड़ाई नहीं थी, असली लड़ाई तो बैटल ऑफ बक्सर थी। मिलिट्री सिग्निफिकेंस बैटल ऑफ बक्सर का है, पलासी तो कॉन्स्पिरेसी थी, पलासी तो पहले ही तय हो गया था। हम लोग देखेंगे इसको, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। दे आर गिविंग यू ए स्टेटमेंट एंड दे आर आस्किंग यू टू एग्जामिन इट, critically examine it. They are giving you a statement and they are asking you to critically examine it. So this kind of question they are asking in modern India. This kind of question they are asking in modern India. Fine. So question number 1 is opinion based. You can say it is opinion based. It is not information based. Not information based. ये मेरी बात समझ रहे हो? तो मॉडर्न इंडिया का भी चैलेंज है पहला कंपलसरी क्वेश्चन। मॉडर्न इंडिया में भी जो पहला चैलेंज है वो है क्या? कंपलसरी क्वेश्चन। कंपलसरी क्वेश्चन मतलब असली गेम कंपलसरी क्वेश्चन का है, असली गेम मैप का है ना? जो मैं कहा करता हूं कि असली खेल क्या है? मैप का खेल है, मैं कंपलसरी क्वेश्चन का खेल है। इफ यू कैन मैनेज कंपलसरी क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द कंपलसरी क्वेश्चन इज नॉट इंफॉर्मेशन बेस्ड, चाहे वो एंशिएंट में हो या मिडेवल में हो या मॉडर्न में हो, अगर आपने कंपलसरी क्वेश्चन में अपनी बढ़त बना ली, मेरी बात सुनो, अगर कंपलसरी क्वेश्चन में अपने को आपने बचा लिया तो बस आईएएस बन गए। है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कंपल्सरी क्वेश्चन कैन डिसाइड, so we should prepare for compulsory question. Our focus should be compulsory question. अगर हमने बाकी पॉपुलर टॉपिक पे बहुत रिसर्च कर लिया और कंपलसरी क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं। सूरज, करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? सारा गेम कंपलसरी क्वेश्चन के अराउंड है, सारा खेल कंपलसरी क्वेश्चन के अराउंड है। एंशिएंट इंडिया में कंपलसरी क्वेश्चन मैप बेस्ड होता है, मिडेवल इंडिया में कंपलसरी क्वेश्चन पेरिफेरल टॉपिक्स बेस्ड होता है, मॉडर्न इंडिया में कंपलसरी क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड होता है। 3 बात समझ में आई मेरी? अरे 3 बात समझ में आई। एंशिएंट इंडिया में कंपलसरी क्वेश्चन मैप बेस्ड होता है, मिडेवल इंडिया में कंपलसरी क्वेश्चन पेरिफेरल टॉपिक बेस्ड होता है, मॉडर्न इंडिया में कंपलसरी क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड होता है। वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई ओपिनियन दे देते हैं, आपको अपना व्यू देना पड़ता है। बच्चे इसके लिए कोई बुक, राइट, कोई बुक आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना बच्चे? इसके लिए कोई बुक मदद नहीं करता है। नो बुक सफिशिएंट, नो बुक अवेलेबल, ओनली योर अंडरस्टैंडिंग, ओनली योर
understanding. Rest is book based. Rest is book based, information based. रेस्ट इज बुक बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड. लेकिन जो पहला क्वेश्चन होता है वो ओपिनियन बेस्ड होता है. ऑफकोर्स दे समटाइम रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समटाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं. गुड न्यूज इज दिस. तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है तब तो हम मैनेज कर देते हैं आराम से. लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है ओपिनियन बेस्ड में, तो है ना सूरज, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है तो थोड़ी चैलेंज बढ़ जाएगी. तो अगर हम उसके लिए तैयार रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. करेक्ट. फाइन. So I just indicated today that in modern India हमें किस चैलेंज से सामना करना पड़ता है. दो तरह के क्वेश्चन होते हैं. एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है, ओपिनियन बेस्ड होती है जो कंपलसरी होती है, और दूसरा बुक बेस्ड होती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है जो हम आराम से कर लेते हैं. वो हमारे नोट्स से होते हैं. राइट. वो हम आराम से कर लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती. अगर कोई एक आप नहीं भी कर पाते हैं तो आपको चॉइस होता है. यू कैन गो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, यू कैन गो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. फाइन. डन. बच्चे, व्हाट यू थिंक, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग इन दिस इंट्रोडक्टरी सेशन, ये यूजफुल है या नहीं है? हमें ये सारी बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जनरली वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, वी डोंट इंटरैक्ट लाइक दिस. तो क्या होता है? वी डोंट गेट एडवांटेज, वी डोंट गेट बेनिफिट. तो हम जो बातें कर रहे हैं इन दिस इंट्रोडक्टरी सेशन, जो बातें हम लोग टॉपिक में नहीं करेंगे, वी विल बी नॉट रिपीटिंग दिस इन whenever we will discuss the topic. So these are relevant or not? So therefore I realized the importance of this session. So therefore before आपको टॉपिक में ले जाने से पहले मुझे लगा कि आपसे पहले बात की जाए. एंशिएंट पे बात की जाए, मिडिवल पे बात की जाए, मॉडर्न पे बात की जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात की जाए, है ना आकाश? तो देयरफॉर आई सजेस्टेड दैट 3 इंट्रोडक्टरी सेशन शुड बी देयर. हम लोग एक दूसरे को जान पाएंगे, हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल को समझ पाएंगे, और फिर हम टॉपिक में जाएंगे, सारी रणनीति बना लेंगे, सारी स्ट्रेटजी समझ लेंगे, और फिर हम टॉपिक में एंटर करेंगे. तो आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा ना? राइट. मुझे कभी कभार लगता है कि शायद दीज एरियाज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. Fine. So what I will do, I will be explaining the syllabus part. So in state PCS they don't ask map based question. सूरज, स्टेट पीसीएस में मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते. I don't know बच्चे, I don't know.
Right, anything you want to ask, anything you want to ask. So, okay, नहीं पूछते. Right. So nice of you, thank you. बच्चे, मैं केवल आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा हूं, है ना. मैंने पहले राइट कोशिश कर रहा हूं कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस चैलेंज को समझ लो, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द टॉपिक. एनीथिंग यू वांट टू आस्क, because in the next session we will discuss briefly the syllabus of modern India, and then we can take up right world history. That would be our last exercise. हम लोग कल सिलेबस पे बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के, और फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की स्ट्रेटजी की बात करेंगे. Yes, anything you want to ask, कुछ भी, anything in your mind you can ask. So my friends from Jammu Kashmir, Karnataka, Agra, कहाँ हो? Any question? Okay, don't worry. Your experience will help you. Suraj, your experience of writing main examination will definitely help. Right, Suraj? So you did not fail, you gained experience. Fine. So we should continue, right? We will continue this introductory session tomorrow, right? Okay, how many marks you need? Bache, if it is 300 plus, it is a good score. Mehboob, 300 plus is a very good score. Right? ओके देन, तो हम लोग मॉडर्न इंडिया के सिलेबस पे बात कर लेंगे, एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री वी विल डिस्कस टुमारो. I will be giving you example. Elucidate is to make it simple, है ना. Elucidate meaning is you have to give some example and you have to elaborate. Sameer, elucidate meaning आपको simple बनाना है. You have to give some example also. Elaborate is just to expand. You don't have to add anything new. You have to expand. I will be giving you example. Then you will understand it in a better manner. So in a proper context, I will be giving you example that what kind of question they can ask you in elucidate, what kind of question they can ask you in elaborate. We will definitely give some example during our class discussion also. So you will get a clearer picture. है ना बच्चे? So of course in answer writing you need facts, but understanding is more important. Because facts you tend to forget, है ना सौरभ? Facts तो हम भूल जाते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो रहती है. तो उस अंडरस्टैंडिंग के बल पर हम आंसर लिख लेते हैं. ओके देन,
So we will continue this introduction right in the next session. Thank you.